Hello, good afternoon. We have already started with our topic, separation of mixtures. There are various ways through which the separation of mixtures can take place, and you already know that we have two types of mixtures, that is homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So there are various kinds of mixtures that can be in which maybe there is one solid which is insoluble in another liquid, and such kind of mixtures can be separated through filtration. So actually in the exams also you can get such kind of question that you are having a mixture of this and this, and how can you separate this mixture. So you actually have to find out the particular way through which you can do that. So that's why under this topic, that is separation of mixtures, we have to understand all these methods, right? We are already done with the filtration, evaporation and crystallization. Now I'm just giving you a hint over here, and why I have written the names of all the processes, because my what I feel is, whenever I send you the animated videos, so it becomes very easy to understand what is happening in the method actually. Whenever like here also I just want to tell you that if you are having this concept in mind, कि we have to understand this and this method of separation of mixture, so you can easily because I'll be sending you the separate videos of the processes, so you need not to consider that particular video as a new topic. You just need to understand that this is a part of a common topic only, that is separation of mixtures. Okay, so let me give you a hint about all these processes. So filtration is such kind of process which is actually used to separate such kind of mixtures in which one of the component is solid and another one is liquid, and that solid is insoluble in that liquid. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई मिक्सचर है जहाँ पे एक जो है कंपोनेंट वो लिक्विड है और दूसरा जो है वो सॉलिड है, तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर जो है वो हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सैंड जो है दैट इज़ पुट इनटू वाटर एंड सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. सो हाउ कैन वी सेपरेट सच काइंड ऑफ मिक्सचर? हम सैंड को हम क्या करेंगे, उसकी फिल्ट्रेशन. उसी तरह से इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन वी नो, जैसे आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सी वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सो वहाँ पे क्या किया जाता है, ऑन द सी शोर ओनली वी जस्ट डिग सम पिट्स सॉर्ट ऑफ थिंग, जिनको लगून्स बोलते हैं, एंड उसमें वाटर जो है, सी वाटर जो है, इट गेट्स फिल्ड अप, एंड ड्यू टू द इवेपोरेशन प्रोसेस वहाँ पे मतलब द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड वी रिमेन or the salt remains left behind. So that is evaporation process. But when it comes to, although it seems crystallization और evaporation सेम है, but crystallization और evaporation में डिफरेंस ये है कि crystallization में हम प्योरीफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स कर सकते हैं. जैसे जो आपके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे evaporation प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट ही एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं सोडियम क्लोराइड एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सोडियम क्लोराइड जो है आई शुड बी एबल टू कंज्यूम इट. सो कंज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअल में क्या किया जाता है, उसकी प्योरीफिकेशन. अब प्योरीफिकेशन प्रोसेस में क्या है, प्योरीफिकेशन प्रोसेस है कि हमने क्या करना है, वही क्रिस्टल जिनको भी हमने प्योरीफिकेशन करनी है, वो क्रिस्टल्स हमने किसी भी कॉम्पोनेंट में डिज़ोल्व किए, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है. एंड हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, हमने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हमने उसको वी जस्ट नीड टू कीप इट एट रूम टेम्परेचर, right? So all the impurities which are soluble in that particular solvent you have taken, तो वो impurities solvent के साथ evaporate हो जाएंगी and you will be left behind with the pure crystals. So crystallization वो भी है जहाँ पे एक solid dissolve किया जाता है liquid में, मतलब components में एक solid है एक liquid है, but जो वो solid है वो उस liquid में soluble है.
Then let us come to the chromatography. Chroma stands for the color and graphy stands for a pattern obtained. Okay, so chromatography जो है एक ऐसा वे है जहाँ पे हम उन तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें कोई भी कलर हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, जैसे हमारे पास जो ब्लैक इंक है, सो इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी कलर्स. सो अगर हम चाहते हैं कि मैं सेपरेटली बताऊँ कि इसमें वायलेट कलर कहाँ है, इंडिको कहाँ है, सो वो सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो मैं सेपरेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड. और हम जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो जो है वो आई बी सेंडिंग यू दैट वीडियो. ठीक है, जैसे मेरे पास क्लोरोफिल ABC, क्लोरोफिल भी 3 टाइप्स में होता है, तो तीनों का कलर जो है वो डिफरेंट है. सो क्रोमा मतलब कलर की बेसिस पे तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना. सब्लिमेशन प्रोसेस जो है हमने पढ़ी है इन द चैप्टर 1 ओनली. कि सब्लिमेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड डायरेक्टली. ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में हम उन कंपोनेंट्स की सेपरेशन कर सकते हैं जिनमें एक कंपोनेंट ऐसा है जिसकी टेंडेंसी हो सब्लाइम करने की. सब्लाइम करने का मतलब है कि इसकी टेंडेंसी हो कि वो वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास मिक्सचर है, मुझे पता है अमोनियम क्लोराइड जो है दैट शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, एंड मेरे पास दूसरा मतलब जो मिक्सचर है उसमें एक जो है वो सोडियम क्लोराइड है और एक है अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और एक कंपोनेंट जो है वो NaCl है. मेरे पास ये मिक्सचर है, ये भी वाइट कलर का, ये भी वाइट कलर का, मिक्स करेंगे तो वाइट पाउडर है. अब मैं इनको सेपरेट करना चाहती हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी उसको, या तो मैं ये करूँ कि मैं इन दोनों के मिक्सचर को, ये सब्लिमेशन प्रोसेस को सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको कंटेनर में लूँगी इस मिक्सचर को ही, एंड देन आई विल स्टार्ट हीटिंग अप द मिक्सचर, बट आई विल बी कीपिंग पेट्री डिश और कवर ग्लास कवर ऑन दिस चाइना डिश. ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें सब्लिमेशन की टेंडेंसी है, तो वो जैसे ही ये सूटेबल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय वो क्या कर जाएगा, वेपर, एंड वेपर्स जो है वो सेटल हो जाएंगे इस कवर के ऊपर जो आपने इसके ऊपर रखा है. ठीक है, हम ये कवर हटाएंगे आफ्टर सम टाइम, एंड इस कवर को सारे जो वेपर्स हैं जब हम उसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड NH4Cl में. तो हमारे पास कंपोनेंट ये भी बन गया और NaCl भी सेपरेट हो गया. सो ऐसे प्रोसेस हम इसमें मतलब इस तरह के कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन में, बट वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक कंपोनेंट जो है उसमें सब्लिमेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए. नाउ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. अब इमिसिबल हो गया जो मिक्स नहीं होते आपस में, जैसे ऑयल में वाटर डाला तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं करते. तो इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. दैट वीडियो ऑल्सो आई विल बी सेंडिंग यू. तो सेपरेटिंग फनल क्या होता है, एक ऐसी इक्विपमेंट है इस तरह का. ठीक है, इस तरह का इक्विपमेंट है. ठीक है, इधर एक कॉर्क लगा रहता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर है टू इमिसिबल लिक्विड्स का, वो मिक्सचर लेके हम इसको उसमें डाल देते हैं. यहाँ से भी इट इज़ क्लोज्ड, एंड हेयर फ्रॉम हेयर ऑल्सो द हेल्प ऑफ दिस कॉर्क वी आर एबल टू क्लोज इट. ठीक है, तो हम इसको दोनों एंड से पकड़ के इसको होल्ड करके देन वी शेक इट. जब हम इसको शेक करते हैं एंड देन वी हैव टू कीप इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. तो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटीज़, हमारा ऑयल की डेंसिटी कम रहती है तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, और आपका वाटर जो जो वाटर है वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से अब आप पहले वाटर को सेपरेट कर लोगे और बाद में ऑयल को सेपरेट कर लोगे. जैसे वाटर यहाँ तक पहुँचा तो आप इसकी नोज़ल को बंद कर दोगे, तो आपने बीकर में वाटर ले लिया, वो अलग कर लिया, एंड देन दूसरे बीकर में हम क्या कर लेंगे, ऑयल को कलेक्ट कर लेंगे. तो दैट इज़ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, फिर है सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स हो गए, जैसे मैंने बोला, मैंने अल्कोहल इन वाटर डाल दिया, या फिर मैंने जूस इन वाटर डाल दिया. कोई भी मैंने दो ऐसे मिक्सचर लिए जो आपस में टोटली मिक्स हो जाते हैं कि मैं उसको नेकेड आई से देख नहीं सकती कि दोनों कंपोनेंट्स कहाँ पे गए. ठीक है, तो उनकी सेपरेशन के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन भी. डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स.
लेकिन हमारे पास अब ये भी ऐसे फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन में हम सेपरेट कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को जिनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है 25 केल्विन। अगर वो डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 केल्विन होता है दो कंपोनेंट्स के बीच में, तो फिर मेथड फॉलो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अब इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारा वैसा ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है। डिस्टिलेशन में हमारे पास सिर्फ एक फ्लास्क यूज़ होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। हमने वो मिक्सचर रख दिया जिसको सेपरेट करना है, यहाँ उसको हीटअप करना स्टार्ट किया और ये ऊपर से क्लोज रहता है एंड थोड़ी सी नॉजल से हम एक डिलीवरी ट्यूब रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, कंडेंसर रखते हैं, उसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, एक एंड से हम पानी डालते हैं, दूसरे एंड से पानी निकलता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, वट एवर वी फ्लो थ्रू इट, तो उसका टेम्परेचर, क्योंकि हम ठंडा पानी डालते हैं यहाँ पे, उसका टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन होगा। टेम्परेचर लोअर डाउन होगा तो अगर वो वेपर फॉर्म में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी कैन कलेक्ट इट ओवर हियर, ठीक है। अब दोनों कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 25 केल्विन का। एक इवेपोरेट हुआ, वो इस डिलीवरी ट्यूब में गया और यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हमने, बिकॉज कंडेंसर की वजह से वो लिक्विफाई हो जाएगा। और ऑब्वियसली 25 केल्विन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो तब तक दूसरा जो है ऑब्वियसली वो सेपरेट होने के लिए यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, या तो वो यहाँ पे रहेगा तब भी हमने उसको प्यूरीफाई कर लिया, या तो हम उसको आफ्टर सम टाइम दोबारा से दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है वहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 केल्विन है। ऐसे केस में हमारे पास इन एडिशन टू दिस एक और चीज़ आती है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स, शीशे के बीड्स रहते हैं, ग्लास बीड्स रहते हैं और बाकी सब कुछ वैसे ही है। मतलब वहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क और इस कंडेंसर के बीच में एक और चीज़ रहती है, वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, एक्चुअली ग्लास बीड्स होने की वजह से वो रास्ता रोकता है वेपर्स का। वेपर्स रुक रुक के यहाँ से जाएंगे तो वो जो 25 केल्विन का जो डिफरेंस है वो मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा डिफरेंस था, बट यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं है, इसीलिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम ग्लास बीड्स रखते हैं, सो दैट अभी एक यहाँ से निकलेंगे वेपर तो दूसरा जब यहाँ जाने की कोशिश भी करेगा तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज ये ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करेंगे बीच में, एंड तब तक पहला वाला कंपोनेंट जो है वो हमारा लिक्विफाई होकर हमने कलेक्ट कर लिया होगा। दिस इज़ हाउ वी डू इट, ओके। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे किया जाता है। यहाँ पे भी हम मिक्सिबल, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जैसे हम गैस, एयर है हमारे, उसके कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नोबल गैसेस हैं, उनके कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं कॉम्प्रेशन, बिकॉज हम जब भी गैसेस कॉम्प्रेस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू लिक्विड स्टेट। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम इस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, जहाँ पे एक सॉलिड है जो कि डिसॉल्व है लिक्विड में, लेकिन हमें वो ऐसे विद नेकेड आइज वी कांट सी इट। यूजली कोलाइडल सॉल्यूशंस की हम बात करें तो जैसे मिल्क है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो हम उसको अगर सेपरेट करना हो, उसमें से अगर बटर को सेपरेट करना है, साइंटिफिकेशन आपने देखा होगा बहुत लाइक इन द प्रीवियस टाइम्स ऑल्सो, वहाँ पे ऐसे यूज़ किया जाता होता है, जहाँ पे जैसे हम मक्खन जो है बटर वी टेक आउट फ्रॉम द कर्ड, तो हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे हम वी टेक सच काइंड ऑफ डिवाइस एंड देन वी हैव टू मूव इट लाइक दिस, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि बटर जो है वो बाहर आ जाता है, एंड द सेम थिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मिक्सी से भी वी डू दैट। साइंटिफिकेशन में वो किया जाता है, साइंटिफिकेशन में डेंसिटी के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो इवन जैसे ब्लड जो है वो भी क्लोराइडल सोल्यूशन है, तो ब्लड में ये काउंट करना कि हमारा आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, तो जो डॉक्टर्स हैं या जो क्लिनिक में एक्सपर्ट्स हैं, ये टेक आउट योर ब्लड और ब्लड में से वो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। हाउ दे कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो इसका वीडियो भी आई बी सेंडिंग यू। सो यहाँ पे रोटेशंस होते हैं, सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस यूज़ की जाती है जहाँ पे रोटेशंस की जाती है एट वेरी फास्ट रेट, सो दैट जो भी आपकी हैवी वाले पार्टिकल्स हैं दैट विल कम टूवर्ड्स द सेंटर एंड लाइटर पार्टिकल्स कम एट द टॉप। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट दैम। यूरिन में से भी आपके जो यूरिन टेस्ट किए जाते हैं जिसमें से आपको पता है कि हाँ इसमें आपका यूरिक एसिड है, तो ऐसे टाइप्स ऑफ टेस्ट में भी आपका साइंटिफिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज़ यूज्ड। सो दिस इज़ अ जनरल और द बेसिक concept, basic idea behind all the separation
methods. So now with the help of those animated videos that I'll be sending you, you can easily understand that what is actually like what we are doing actually. Okay, thank you so much.